علاقائی خبروں میں خوش آمدید۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دریائے سندھ سے 6 نئی کینالز نکالنے کے معاملے سے ملک اور سندھ میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹیاری میں بھی وکلا برادری اور قوم پرست جماعتوں کی جانب سے قومی شاہراہ بلاک کر کے دھرنا دیا گیا۔ ٹریفک کی آمد و رفت شدید متاثر ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں مٹیاری سے علی فیضان۔ مٹیاری میں قوم پرست جماعتوں اور وکلا برادری کی جانب سے 6 کینال نکالنے کے خلاف سندھ میں پرامن احتجاج کرنے والوں کے اوپر پولیس گردی کر کے لاٹھی چارج کرنے کے خلاف قومی شاہراہ بلاک کر کے دھرنا دیا گیا، جس میں مٹیاری بار کے وکلا، جسکم، ایس ٹی پی، ایس یو پی، تاجر ایسوسی ایشن، قومی عوامی تحریک سمیت شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ قومی شاہراہ بلاک ہونے کے باعث روڈ کے دونوں اطراف کئی گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی۔ اس موقع پر مظاہرین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ نو مور کینالز کا نعرہ ہے، انشاءاللہ ریٹن میں لیں گے۔ یہ جو نا ہٹ دھرمی ہے ریاست کی، یہ نہیں چلے گی انشاءاللہ۔ یہی مطالبہ جب تک یہ کینال کے جو نوٹیفیکیشن ریکال نہیں ہوں گے تو ہمارا احتجاج جاری ہوگا۔ جتنا بھی یہ تشدد کریں گے اتنا یہ بڑھے گا۔ ساری سندھ سراپا احتجاج ہوگی، کینال کی واپسی تک یہ بالکل احتجاج ہوگا۔ پوری سندھ سر پہ احتجاج ہے، کراچی کا کشمور تائیں روڈ بلاک ہیں، جو وکیل برادری ہے پنج جس ہوجے انہن کے جن سان گڈ قوم پرست پارٹیوں ان سان گڈ دھرنے انہن کے ॿڌايو اسان سندھ جا حلالي پٹ آहियूं، اسان پنहिंजे سنڌي भाउरनि सां गॾु आहियूं۔ سندھ جڏهं اڄ پرامن طریقے سان سراپا احتجاج ہے کہ پوری سندھ کینالن کے نامنظور کرے چکی ہے، ان میں وکلا برادری ہوجے، شاگرد ہوجے یا قوم پرست تنظیموں ہوجن، پوری قوم جی اج سندھو دریا کے 6 کینالن لا پرامن طریقے سے روڈ تے آئے۔ مظاہرین نے کہا ہے کہ پوری سندھ میں متنازع کینال منصوبے کے خلاف پرامن احتجاج کیا جا رہا ہے، جس پر تشدد کرنے کے لیے پولیس قانون کا غلط استعمال کر رہی ہے، جس کی ہم سخت الفاظوں میں مذمت کرتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی فیضان، مٹیاری۔ اور اب بات کریں گے پنجاب بھر میں گندم کے کاشتکاروں کی جو زبوحالی کا شکار ہیں۔ گندم کی فصل تیار ہے مگر کسان انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ منافع تو دور کی بات، لاگت بھی پوری نہیں ہو رہی، قرض لینے والے چکر لگا رہے ہیں۔ پنجاب بھر کی طرح جہانیہ میں بھی گندم کا بحران شدت اختیار کر چکا۔ ہمارے نمائندے چودھری عمران علی تحصیل جہانیہ کے کسانوں کے مرکزی رہنما ملک اکرم کھنڈ کے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پاکستان میں زراعت کو ریڑھ کی ہڈی تو مانا جاتا ہے، لیکن حکومت پاکستان کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کسان بیچارہ قسم پرسی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کسان کی گندم خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور آگے فصل بیجنے کے لیے بھی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ جہانیہ شہر کے مرکزی رہنما ملک اکرم خان موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، آپ مرکزی رہنما ہیں کسانوں کے، آپ بتائیں کہ گندم کے بارے میں آپ کی حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہیں؟ گندم کی جو پالیسی ہے گورنمنٹ کی انتہائی ناقص ہے۔ گندم جو ہے اب گورنمنٹ خرید نہیں کر رہی۔ یہاں پر اس کا جو ریٹ تھا پہلے 4000 روپیہ پچھلے سال مقرر کیا تھا، اور ذمہ دار جو ہے پچھلے سال بھی گندم کی وجہ سے جو ہے ان کو کافی نقصان ہوا، اور اس مرتبہ بھی گورنمنٹ نے جو ہے گندم کا ریٹ الاؤنس نہیں کیا، اور یہاں پر کھلے آسمانوں کے نیچے گندم جو ہے پڑی ہے اور کسانوں سے خریدار کوئی نہیں آئے۔ جو کسان ہیں ذمہ دار بھائی ہیں وہ رول گئے ہیں، اور یہاں پر اس میں مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اور یہاں پر کھاد مہنگی ہے، ڈیزل مہنگا ہے، اور زرعی ادویات مہنگی ہیں، تو ذمہ دار جو ہے بخلاہٹ کا شکار ہے۔ جی، جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ہماری درخواست ہے کہ گندم کا ریٹ مقرر کیا جائے اور کسانوں سے گندم خریدی جائے تاکہ کسان اپنی آگے والی فصل بیجنے کے لیے بھی خرچے پورے کر سکیں۔ جی بہت شکریہ عمران، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ رخ کریں گے بہاڑی کا، جہاں گندم کی کٹائی کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت کی جانب سے گندم کی خریداری نہ ہونے اور ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کسان انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ گندم کا ریٹ اتنا کم ہے کہ ہمارے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے۔ ہمارے نمائندے مصدق چودھری اس وقت کسانوں کے ہمراہ موجود ہیں، آئیے ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی مصدق، مزید کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پنجاب میں گندم کی کٹائی کا عمل جاری ہے۔ لوگوں نے اپنی گندم کی کٹائی کے لیے ہارویسٹر اور تھریشر مشینوں کے ذریعے اپنی گندم نکال رہے ہیں۔ ایک طرف تو گندم کا جو کٹائی کا عمل جاری ہے، لیکن دوسری طرف کسان حکومت کی طرف سے گندم کی خریداری نہ ہونے پر انتہائی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ اس دفعہ حکومت نے گندم کا انتہائی کم ریٹ کیا، جس کی وجہ سے ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو رہے۔ اس وقت میں ایک فیلڈ میں موجود ہوں، میرے ساتھ کچھ کسان بھی موجود ہیں، آئیے ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جو ہماری گندم ہے نا وہ تقریباً 3400 روپے کاسٹ پڑ رہی ہے، اور ہمیں جو ہے اس ٹائم اس میں فیلڈ میں مل رہا ہے وہ 2100 روپے مل رہا ہے۔ تقریباً 1200-1300 روپے فی من جو ہے نا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔
इस वजह से कुछ लोग कहते हैं जी गंदम तो 2200 पड़ रही है। भाई वो खुद काश्त तो करे ना, वो देखे ना, DAP 15,000 की है, यूरिया 5,000 की है, डीजल का रेट बढ़ गया है, और हमारी गंदम कैसे सस्ती हो गई है। भी जो फील्ड है वो भी बड़ा महंगा है, लेकिन हमारी गंदम को कोई पूछने वाला नहीं है। जिस दिन की ये मरियम बीबी आई है वज़ीर आला पंजाब साहबा, ये किसानों को सत्यानाश कर दिया, इसने किसान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। हम तो आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी इस बीबी को उतारे, कोई मर्द ले आएँ जो इतनी नुकसान कर रही है किसानों का, इसको समझ ही भी नहीं है। और वो ऊपर जो है ना वो फौज बना दी है औरतों की, वो प्रेस समा भट्ट साहब वो कहती है गंदम में कोई और मटीरियल भी निकलता है। भाई वो आकर दिखाएँ ना कौन सा मटीरियल निकलता है। इसीलिए जी बिल्कुल, किसानों का यही कहना है कि हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों की वजह से हमें इस बार गंदम में इंतहाई नुकसान हुआ। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो अपनी जो पॉलिसियाँ हैं वो बिल्कुल ठीक करें, क्योंकि जो ज़राअत है वो पाकिस्तान की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर किसान खुश हो गए तो मुल्क भी खुशहाल होगा। जी बहुत शुक्रिया मुसद्दिक, आपने तफसीलात से आगाह किया। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चनाब नगर में भी गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट नामुकर्रर होने की वजह से और बारदाना न मिलने पर काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल वड़ाइज। मुल्क के दूसरे शहरों की तरह चनाब नगर में भी गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से गंदम का रेट ना मुकर्रर होने की वजह से और बारदाना ना मिलने की वजह से काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। काश्तकारों का कहना है हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए कोई भी मौसर लाए अमल तैयार नहीं किया गया। अभी तक गंदम का कोई रेट मुकर्रर नहीं हो सका। महंगी खादें, बीज और ज़रिया अद्वियात के बायस हमारे अखराजात भी पूरे होते हुए नजर नहीं आ रहे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हुकूमत ने गंदम का मुनासिब रेट मुकर्रर ना किया तो हमारे अखराजात भी पूरे नहीं होंगे और हमारी दिन रात की मेहनत जाया हो जाएगी और हम मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर न करने पर किसानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। गंदम की कीमती पैदावारी लागत से भी इंतहाई कम है। किसानों को शदीद माली नुकसान का सामना है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मोहम्मद अबू बकर मुगल से। जी अबू बकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात करते चले गंदम की फसल की, तो गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है। जो किसान अपनी फसल को कटाने के बाद मंडी की तरफ जो गंदम ले जानी शुरू कर दी है, और हुकूमत पंजाब की जानिब से गंदम का रेट मुकर्रर ना करने की वजह से वो काफ़ी परेशान है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हुकूमत पंजाब की जानिब से जो उन्होंने रेट मुकर्रर नहीं किया और मंडियों में आरटीओ ने आपके साथ क्या रेट मुकर्रर किया है, आप इस हवाले से हुकूमत पंजाब से क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम जी, हुकूमत पंजाब से ये अपील है कि इन्होंने रेट नहीं निकाला और जो उनसे आड़ती हैं वो भी 2000-2100 रेट लगा रहे हैं, और ये खाद भी और डीजल का खर्चा ये भी पूरा नहीं हो रहा, और उसके अलावा ज़मीन का ठेका ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत पंजाब से अपील है कि इसका अजाला किया जाए। जी आपने जाना किसान की ज़ुबानी, उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि हमारी जो फसल का खर्चा है वो भी पूरा नहीं हो रहा, और जो आरती माफिया 2021 से ज़्यादा रेट नहीं दे रहे। उन्हें चाहिए, हुकूमत पंजाब को चाहिए कि गंदम का रेट मुकर्रर करे और जो किसान का नुकसान है उसका फौरी अजाला करे, नहीं तो आइंदा हम गंदम और चावल की फसल लगाने बंद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया अबू बकर, आपने तफसीलात से आगाह किया। रुख करेंगे लिया का, जहां लिया में भी गंदम की खरीदारी में ताख़ीर और कम कीमतों ने किसानों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर रखा है। कई इलाकों में किसान अपनी पैदावार घरों में ज़ख़ीरा करने पर मजबूर हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ मेहर कामरान की इस रिपोर्ट में। गंदम की फसल इलाका थाल में अहम तरीन फसल गर्दानी जाती है, जिससे किसानों का रोजगार जुड़ा होता है। लेकिन इस बार गंदम की फसलें कटाई और गहे के बाद भी किसानों की परेशानियों को बढ़ा रही है और अगली फसल की तैयारी के हवाले से शदीद खदशात का शिकार हैं। सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि किसान गंदम घरों में जखीरा करने पर मजबूर हो गए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना मरियम नवाज साहब का, साडी वज़ीर आला थी कि जेड़ी साडी ज़राअत के मुतल्लिक सोचिए, बहुत अच्छी सोचिए, असां उनके बेहद मशकूर हैं। सारे को आके तुसा पूछो, तुसा तो बह के अपनी सदारत अपनी हुकूमत से बैठे हो, ना डीजल का रेट कम है, ना खाद का रेट कम है, ना ठेकेदार को सुकून है, ना दाने पूरे थीने ते ना वो ठेका अगर जबान तो बेजबान थी दे तो वो ठेकेदार आइंदा वो काश्त नहीं कर सकता। काश्त करें दे या मुजेरा है या ठेकेदार है, उनका मिलिया मेट थी ना वंदे घर दे दाने नहीं पजदे। पईयन थे घारी में रूदियां पईयन थे ना व्यापारी खिंदे
न कुछ ऐसा घर रखी पे है, खर्चे पूरे छीने नहीं, न रेट पूरा मिल जाए। असा परेशान है जट बंदे, न अगा फसल वहा सकते हैं, अगर बारी में परेशान थी के खड़े था। कोई मेहरबानी करो, कोई रेट कुछ उजाला करो, कोई रेट सही करो। गंदम की कम कीमत और खरीदारी में ताखीर ने किसानों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। किसान अब वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो किसानों की आवाज सुने। कैमरा टीम के हमरा मार कामरान थिंद, NTN न्यूज लिया। पंजाब भर की तरह तौसा शरीफ में भी गंदम की कटाई का सीजन जोबन पर है। फसल अच्छी होने के बावजूद भी कम रेट की वजह से काश्तकार इंतहाई मायूसी का शिकार हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल शहजाद। जी बिल्कुल, पंजाब भर की तरह तौसा शरीफ में भी गंदम की कटाई का सीजन अपने पूरे जोबन पर है। गंदम काटी जा चुकी है और अब थ्रेशर लग चुके हैं। इस हवाले से यहाँ के मकामी जिम्मेदार क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। रेट बड़ा मायूस कुल है, बड़े परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि रेट बढ़े ताकि किसान थोड़ा खुशहाल हो। ये औसत अच्छी है, बड़ा है रेट बड़ा मायूस कुल है, बड़े परेशान है, आगे फसल काश्त नहीं कर सकते। बात करते हैं कि मेहरबानी करके रेट बढ़ाएं ताकि खुशहाल किसान आगे चल सके। ये शुरू हो चुकी है, गंदम के बकाया बहुत ज़्यादा है, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, रेट बिल्कुल नहीं है। कोशिश करें जो इसके बारे में हमारी हुकूमत से अपील है कुछ करें, रेट बढ़ाएं। जी आपने तौसा के मकामी जिम्मेदारों की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि फसल तो अच्छी हुई है लेकिन हुकूमत की जानिब से दिए गए रेट इंतहाई मायूस कुन है, जिसकी वजह से हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि रेट बढ़ाए जाएँ ताकि काश्तकारों को नुकसान से बचाया जा सके। जी उधर डेरा गाजी खान में भी गंदम का रेट मुनासिब ना होने की वजह से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। दौरान गंदम कटाई इस साल बारिशें न होने की वजह से गंदम की पैदावार बेहतर है। गला मंडी में 2400 से लेकर 2500 रुपए तक फी मन गंदम खरीदो फरोख्त हो रही है, और जबकि देही इलाकों में छोटे काश्तकार फी मन गंदम 2000 से 2200 रुपए तक बेच रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खोसो से। जी अब्दुल रज़ाक, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस टाइम मैं मौजूद हूँ डेरा गाजी खान गल्ला मंडी के अंदर। मैं आपको ये बताता चलूँ, इस मरतबा जो गंदम का रेट है, काश्तकारों का कहना है कि वो मुनासिब नहीं है। इसी तरह से अगर बात करें खाद और इसी तरह से डीजल की बात करें, स्प्रे की बात करें, तो वो महंगे दामों काश्तकार को मिलता रहा। अगर रेट की बात करें तो आज रेट जो है वो काश्तकार की समझ से बालातर है। और अभी की अगर बात करें यहाँ गला मंडी की, यहाँ का जो रेट है 2400 से लेके 2500 रुपये पर फी मन गंदम सेल किया जा रहा है। और काश्तकार बेचारे काफ़ी हद तक परेशान दिखाई देते हैं। ये डेरा गाजी खान गला मंडी के मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक खोसा, आपने तफसीलात से आगाह किया। गुजरात में भी गंदम की कटाई का अमल तेजी से जारी है। बारदाना न मिलने पर काश्तकार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से किसानों के लिए कोई भी मौसर लाहे अमल तैयार नहीं किया गया। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं गुजरात से हमारे नुमाइंदे बशारत अफजल भट्ट। जी बशारत अफजल, आगाह कीजिएगा। जी मैं हूं बशारत अफजल भट्ट और इस वक्त आपको गुजरात से रिपोर्ट कर रहा हूं। पूरे पंजाब भर की तरह गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है और गुजरात में भी लोग 50% से ज्यादा अपनी गंदम की कटाई मुकम्मल कर चुके हैं। गंदम की फसल तैयार होने में कई मराहिल से गुजरती है। किसान अपनी जमीन को तैयार करता है, उसमें हल चलाता है, उसमें पानी देता है, स्प्रे करता है, मुख्तलिफ किस्म की खादें डालता रहता है, तब जाकर कहीं गंदम की फसल तैयार होती है। जब ये गंदम की फसल तैयार हो जाती है तो किसान अपने रब से, अल्लाह ताला से यही दुआ करता है इसकी मुझे मेहनत का फल दे, और साथ साथ वो गवर्नमेंट से भी तवक्को करता है कि गवर्नमेंट किसी की सूरत में मुझे सब्सिडी दे या अच्छा रेट दे ताकि मेरी मेहनत का फल मुझे मिल सके। लेकिन इस बार ना ही कोई गंदम की खरीदारी के मरकज तय हुए हैं और ना इस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई रेट तय किया है। इस वक्त हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि ये गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं। जी हम गवर्नमेंट से तवक्को रखते हैं, गंदम का रेट सही होना चाहिए। बहुत ही बड़ा खर्चा होता है गंदम पर, हम बहुत बड़ी मेहनत करते हैं, खाद वगैरह बहुत महंगी है, गंदम के रेट बहुत ही कम है, हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है। जी इस वक्त हमारे साथ गुजरात में एक आरटी चौधरी इमरान नबी साहब मौजूद हैं, आइए इनसे पूछते हैं ये किस रेट पे गंदम को खरीद रहे हैं और ये गवर्नमेंट से क्या तवक्को रखते हैं। जी गवर्नमेंट से हम यही तवक्को करते हैं कि किसानों को किसी तरीके से भी फैसिलिटेट किया जाए ताकि किसान अगर खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। मोहतरमा मरियम
नवाज साहबा जैसे पंजाब में बहुत अच्छे तरीके से बाकी सारे कामों पे फोकस किए हुए हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं उनको। किसानों के मामले में और एग्रीकल्चर के मामले में भी उनको इसी तरह मुतहर्रिक होना चाहिए और उनको चाहिए कि हर तरीके से या जिस तरह भी हो सके उनको फैसिलिटेट करें ताकि किसान खुशी से अपनी फसल जो है वो काश्त कर सके। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने किसानों की भी और आड़ती की भी बात सुनी है, किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बारदाना मुहैया करे, एक रेट तय करे, अगर नहीं तो किसी भी सूरत में सब्सिडी मुहैया करे। वो चाहे पानी की सूरत में हो सकती है या पैसों की सूरत में हो सकती है या खाद सस्ती की सूरत में हो सकती है, ताकि किसान खुशहाल हो सके। बिशारत अफजल भट्ट, कैमरामैन टीम के साथ, गुजरात। बहावलनगर में भी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है। किसान अपने रिवायती अंदाज में ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर गंदम की फसल काट रहे हैं, अपनी मेहनत का जश्न मना रहे हैं। बहावलनगर से देखते हैं वसीम अख्तर की ये रिपोर्ट। बहावलनगर के नवाही इलाका मुरलीगढ़ में गंदम की कटाई का आगाज हो चुका है। काश्तकार अपने रवायती अंदाज में ढोल की ताप पर भंगड़े डालकर गंदम की फसल काट रहे हैं और अपनी मेहनत का जश्न मना रहे हैं। गंदम की सुनहरी बालियां काटने की खुशी तो है, लेकिन गंदम के मुनासिब रेट ना मिलने पर किसान खासे परेशान भी हैं। साडा हुकूमत से मुतालबा है 5000 ਨੂੰ ਕਣਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤਾਜਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਘਾਟੇ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ 5000 ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਵੇ ਕਣਕ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वरना साढ़े ते जेड़ा है पीछे ना कणक काश्त करनी है। किसानों का कहना है कि अगर गंदम की कीमत में इजाफा ना किया गया तो इन्हें शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत गंदम की इमदादी कीमत 5000 रुपए फी मन मुकर्रर करे ताकि इनकी मेहनत रायगा ना जाए। जी गंदम दे असी अज कटाई शुरू कर दी है कि पिछली दफा भी साडा रेट 2700 किया है, लेकिन सानू बोरियां नहीं लभियां ते मरियम दे अगे हाथ जोड़ के मिन्नत करने वजीर आला नू कि गंदम दा रेट 5000 किया जावे, वरना लाख रुपया ठेका है, लाख रुपया खर्चा किया गया, वरना कोई चीज नहीं बच रही। साडी अपील है वजीर आला नू कि गंदम दा रेट 5000 किया जावे। किसानों का कहना है कि गंदम की काश्त पर लागत बहुत बढ़ चुकी है, खाद बीज और डीजल महंगा हो गया है। अगर गंदम के रेट में इजाफा ना हुआ तो हमें बहुत नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बहावलनगर के किसानों ने गंदम की कटाई का अमल तो शुरू कर दिया है, लेकिन हुकूमत की जानिब से रेट सही ना मिलने पर किसान काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद वसीम अख्तर, NTN न्यूज़, बहावलनगर। और अब आपको हारूनाबाद से अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि चंद रोज कबल सौतेले बाप के तशद्दुद का निशाना बनने वाला बच्चा चल बसा। 15 रोज पहले मामूली सी गलती करने पर सौतेले बाप ने 13 साला लड़के पर बेईमाना तशद्दुद किया था। रेस्क्यू इंचार्ज ने बताया कि इत्ला मिलने पर रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो बच्चे का सांस रुक चुका था। रेस्क्यू टीम ने CPR के जरिए सांस बहाल की और अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन 15 दिन जिंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद बच्चा आज दुनिया फानी से कूच कर गया। रुक करेंगे हुजरा शाह मुकीम का, जहां तेज रफ्तार कार ने 4 मोटरसाइकिल सवार शहरियों को कुचल दिया। हादसे में 2 अफराद मौके पर जाँ बहक हो गए, 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। देखते हैं तनवीर अहमद शाहीन की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम में तेज रफ्तारी के बायस खौफनाक हादसा रूनुमा हुआ है। तेज रफ्तार कार ने 4 मोटरसाइकिल सवार अफराद को कुचल डाला। खौफनाक हादसे में नईम अहमद, मोहम्मद आबद वटू नामी शहरी मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि मोहम्मद लतीफ़ और मोहम्मद नवाज नामी 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। वाक़े की इत्तला मिलते ही 1122 की टीमें मौके पर पहुँच गई और जख्मियों को अस्पताल रेफर कर दिया गया, जबकि जाँ बहक होने वाले अफराद को जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के सुपुर्द कर दिया गया। तेज रफ्तार कार का ड्राइवर गाड़ी को जाए वकुआ से लेकर जाने में कामयाब हो गया। अब के 2 अफराद की मौत का सबब बनने वाली गाड़ी और उसके ड्राइवर की तलाश जारी है। सराय मुगल में पेट्रोलिंग पुलिस ने दौरान चेकिंग चोरी की कार पकड़ ली। पुलिस के मुताबिक हला से आती सफेद रंग की कार को दौरान चेकिंग रोका गया। मालूमात पर ड्राइवर कागजात ना दे सका और फरार होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने फौरी गिरफ्त में ले लिया। कार 1 साल कबल सराय सिद्धू खानेवाल से चोरी हुई थी। पेट्रोलिंग पुलिस मोहम्मद मालिक ने ड्राइवर कार को थाना सराय मुगल मुंतकिल कर दिया है। कार ड्राइवर और चोरी शुदा कार पर पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कार के असल मालिक का पुलिस कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर।
अब रुख करेंगे तौसा शरीफ का, जहां चंद रोज कबल 2 पुलिस अफसरान को शहीद करने वाले डाकुओं के खिलाफ सर्कल तौसा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 डाकू हलाक कर दिए। पुलिस जराये के मुताबिक ये तीनों डाकू पुलिस अफसरान को शहीद करने में मुलविस थे। मजीद जानते हैं सुहेल शहजाद की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, चंद रोज कबल थाना सदर तौसा के इलाके में एएसआई गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद को शहीद करने वाले 3 डाकू सिपरबंद 2 के मकाम पर फायरिंग के तबादले में हलाक कर दिए गए। पुलिस राय के मुताबिक पुलिस थाना सदर तौसा की हदूद में सिपरबंद 2 के मकाम पर दौरान गश्त जराइम पेशा अनासर की इत्तला पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान 5 मुसल्लह मुलजमान दरिया की जानब से आते हुए सिपरबंद 2 की तरफ बढ़े और पुलिस पार्टी को देखते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हिफाजती खुद अख्तियारी के तहत पोजीशन संभालते हुए जवाबी फायरिंग की। तकरीबन 15 से 16 मिनट तक जारी रहने वाले फायरिंग के तबादले में 3 खतरनाक डाकू हलाक हो गए। हलाक होने वाले मुलजमान की शनाख्त रहमतुल्लाह उर्फ रांझा संजरानी, फहद उर्फ फादी और आसिफ और हाजी संजरानी के नामों से हुई है, जो थाना सदर तौसा की हदूद में एएसआई गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद को शहीद करने में मुलविस थे, जबकि 2 मुलजमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौका पर डीपीओ डेरा गाजी खान सैयद अली खान का कहना था कि एएसआई गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद ने अमन अमान के कयाम के लिए डेरा गाजी खान में जराइम पेशा अनासर के खिलाफ नुमाया किरदार अदा किया। पुलिस फोर्स उनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखेगी और मुजरमाना अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां भरपूर अंदाज में जारी रहेंगी। सुहेल शहजाद, NTN न्यूज, तौसा शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की क़यादत में डिस्को सपोर्ट यूनिट्स का रीजन भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। लेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट की हदायत पर नादहिंदगान और बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम रीजन भर में जोरों शोर से जारी है। ऐसी थर्ड सर्कल अहमद शहजाद चुगताई और एक्शन भगवानपुरा कामरान नवीद की सरबराही में डेस्को स्पोर्ट यूनिट के हमरा महमूद बूटी सब डिवीज़न SDO तनवीर हुसैन, मीटर इंस्पेक्टर शाहद नकवी, एजाज हमीद लाइन सुप्रीडेंट, सगीर शाह लाइन सुप्रीडेंट और दीगर अमले ने रात 3 बजे रेड करके करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ ली। महमूद बूटी के एरिया अल्लाह तवक्कल रोड पर जाहिद मंजूर के नाम से बर्फ खाना ट्रांसफार्मर की LT से डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहा था। मुलजिम ने लेस्को अमला को देखकर डायरेक्ट लगी तारें खींचना शुरू कर दी, जो कि आप फुटेज में देख सकते हैं। बर्फ खाने के मालिक जाहिद मंजूर के बेटे हुसैन को मौका पर गिरफ्तार कर लिया गया। मौका से ट्रांसफार्मर भी उतार लिया गया और चोरी में इस्तेमाल शुदा केबल भी माल मकरूजा हवाला पुलिस करके अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी जमा करवा दी। लेस्को ने अपनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। कैमरामैन कामिल शहजाद के साथ नवाज भट्टी, NTN न्यूज़ लाहौर। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हबीबाबाद में ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत अमीरुल मुजाहिदीन साहबजादा मुफ्ती हाफिज़ अनस रिजवी ने की। कॉन्फ्रेंस में अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत पर जोर दिया गया। मज़ीद देखते हैं हबीबाबाद से हमारे नुमाइंदे रिजवान तारिक की इस रिपोर्ट में। बाद में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुश्शान व फ़कीदुल मिसाल ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस की सदारत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा अक्से अमीरुल मुजाहिदीन साहबजादा मुफ्ती हाफिज़ अनस रिजवी की कॉन्फ्रेंस में सैकड़ों की तादाद में आशिकाने रसूल ने शिरकत करते हुए अपने दिलों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से मुनव्वर किया। इस मौका पर अमीरुल मुजाहिदीन साहबजादा मुफ्ती हाफिज़ अनस रिजवी ने खिताब करते हुए कहा कि नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत पर पहरा देना और इसकी हिफाजत करना हम सब पर फर्ज है। वो कहते हैं जी हमारी इन्हीं के साथ जंग है। मैं कह रहा हूं तुम सारे पीछे हो जाओ, लब्बैक लोगे कर दो, देख रहे मोदी नस्ता है नहीं है। मुफ्ती हाफिज़ अनस रिजवी साहब ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हुए कहा कि फ़लस्तीनियों की अमली मदद का ऐलान किया जाए। ये वक्त दुश्मन को ताकत दिखाने का वक्त है। फ़लस्तीन के मसले पर हुक्मरानों की मुजरमाना खामोशी कबूल नहीं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद रिजवान तारक, NTN न्यूज़, हबीबाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन पर बुनियादी सेहत मरकज़ को न्यू बनाने के ऑर्डर पास किए गए थे, जिस पर कायमपुर का इलाका शाहपुर बुनियादी मरकज़ सेहत करप्शन की नज़र हो गया। 15 रोज़ में ही बुनियादी सेहत की नई इमारत की दीवारें फटना शुरू हो गईं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन परहार, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी हसनैन, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट, बहावलपुर तहसील हासिलपुर का एक एरिया है शाहपुर शाह जिसे कहा जाता है। वहाँ पर मरियम नवाज के विजन के मुताबिक जो बुनियादी मरकज़ सेहत थे, जो टूट फूट का शिकार थे, उनको दोबारा रिन्यू करने का और न्यू बनाने का ऑर्डर जो था वो जारी किया गया था। यहाँ पे
वसीम ठेकेदार जो था उसे ठेका दिया गया था, लेकिन ठेका देने के बावजूद चंद रोज गुजरने के बाद जो बिल्डिंग की इमारत थी वो टूट फूट गई और उसके अंदर दरारें पड़ गई थी। लेकिन वसीम ठेकेदार का मौक़िफ़ लेने की अगर हमने कोशिश की तो वो कहता है कि ये इस चीज़ का हम इंतजार किए जा रहे थे कि ये टूटे तो हम दोबारा उसकी जो रिन्यू था वो हम दोबारा करें। लेकिन इंतजामिया से हमारी अगर बात हुई, DDO जो हासिलपुर तहसील अहमद साहब है उनसे हमारी बात हुई, इंजीनियर से हमारी बात हुई, तो उन्होंने किसी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो मामलात है वो ठेका बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, वो देखते हैं। उसके बावजूद उन्होंने वसीम से अगर रब्ता किया तो वसीम ने जो था अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। अगर बात की जाए बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हवाले से तो महकमा मरियम नवाज ने जो बिल्डिंग के रिन्यू थे, बुनियादी मरकज़ सिहत वगैरह के देने का ऑर्डर जो था वो पास किया था, लेकिन शाहपुर इलाका है तहसील हासिलपुर का, वहाँ पे जो बिल्डिंग है वो अभी टूट फूट का शिकार है। लेकिन वसीम ठेकेदार ने जो है अपनी करप्शन को छुपाने के लिए उन्होंने जाके दोबारा जो था वो बिल्डिंग को रिन्यू करने का ऑर्डर जो था वो जारी किया था। जी आरिफ वाला का रुख करें, जहां तहसील इंतजामिया के नाअहली गुलशन इकबाल पार्क बदहाली का शिकार है। जगह जगह कचरे के ढेर लग गए, लाइटिंग खराब है, घास और पौधे भी खुश्क हो गए। गेट और बाउंड्री वॉल पर लगाए जाने वाली बॉर्डर नशई चुरा कर ले गए। मजीद बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हाजी उमैर हसन। जी हाजी उमैर हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आरीवाला के गुलशन इकबाल कॉलोनी के पार्क में, जो किसी वक्त में जो है वो शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। इस वक्त वो इसमें जो लगी सीटें हैं, झूले हैं, वो टूट फूट का शिकार हैं। जो लोहेदार तारें लगी हुई थी वो भी टूटी फूटी हुई पड़ी हैं और ये नशइयों की आमाज का ज़्यादा बना हुआ है। मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी, ये आरीवाला में किसी वक्त 2000 ये तकरीबन 2000 में ये बना था और इसको काफ़ी अरसा बीत चुका है, अभी तकरीबन 24-25 साल का अरसा बीत चुका है। लेकिन ये उस वक्त जब ये बनाया गया तो आरीवाला में सबसे खूबसूरत पार्क था ये, जहाँ पे फूल लगे हुए थे, फुहारे से पानी चल रहा था, झूले लगे हुए थे, बच्चों के लिए बैठने के लिए सीटें यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन पता नहीं इसको किसकी नज़र लग गई है और अब आरीवाला में ये इसका जो बुरा हाल है। जी, जैसा कि आपने अहले इलाका की गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारक साहिबा और तहसील इंतज़ामिया इसका नोटिस लें और इसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए ताकि जो शहरी हैं वो बआसानी आके यहाँ पे सैर व तफरी से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। जी, पाकपतन के शेल्टर होम में ख़वातीन असीरान के साथ रहने वाले कमसिन बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम करने के लिए खिलौने और कुतुब मुहैया की गई। राव रमज़ान एजाज की रिपोर्ट देखते हैं। शेल्टर होम में जिंदगी गुजारने वाले नन्हे बच्चे जो माशरती मसाइल और हालात के बायस बचपन की उछल कूद और मुस्कुराहटों से महरूम थे, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक इन बच्चों के लिए किताबें और खिलौने लेकर शेल्टर होम पहुंच गई। शेल्टर होम में हमारे पास जो बच्चे आते हैं उनके लिए हमने एक फॉर्मल एजुकेशन भी अरेंज करके रखा हुआ है कि जो किस क्लासेस के होते हैं उसके मुताबिक उनको सिलेबस के साथ हम आगे क्रिएट किया जाए। और इसके अलावा इनफॉर्मल, जैसे कि आप इस पूरे सेटअप पे देख रहे हैं, या सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल लर्निंग, इंटरेक्टिव लर्निंग है जो कि आजकल स्कूल पे बहुत ज़्यादा फोकस भी किया जाता है ताकि बच्चे बुक्स के थ्रू, एक्शंस के थ्रू और प्रैक्टिकल के थ्रू लर्निंग कर सके। तो हम बच्चों को इधर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों एजुकेशन दे रहे हैं ताकि बच्चे हमारी सोसाइटी का पार्ट बन सके और किसी तरीके से भी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में पीछे ना रहे। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने इन बच्चों में किताबें और खिलौने तकसीम किए और इन बच्चों के साथ वक्त भी गुजारा। लेकिन इन बच्चों के साथ मैंने स्पेशली कुछ चाहा कि आज का दिन इनके साथ इनके प्ले रूम में कुछ टाइम स्पेंड कर लें, इनके स्पाइडरमैन, इनके पिज़्ज़ा, इनके कार्स के साथ, और बच्चे खुश हैं माशाल्लाह बहुत, किसी कमी का महसूस ना कर सके और इनको हर तरीके से फैसिलिटेट किया जाए। ज़िला इंतजामिया का ये इक़दाम इन बच्चों को इनका खोया हुआ मुकाम वापस दिलाने की खूबसूरत कोशिश है। कैमरा टीम के साथ राव रमज़ान एजाज, NTA न्यूज़, पाकपतन। और आरिफ वाला गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल शरीफपुरा के गेट के सामने कचरे के ढेर लग गए। गंदगी और बदबू की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया। कचरे के ढेरों पर आवारा कुत्तों की भरमार है जो किसी भी वक्त बच्चों को काट सकते हैं। देखते हैं हाजी उमैर हसन की ये रिपोर्ट।
आरिफ वाला महल्ला शरीफपुरा शमशाबाद में वाक़या गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के करीब कूड़े करकट के ढेर और 8 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैले गंदे पानी के जोहड़ ने इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। बदबू और तवफ़न के बायस न सिर्फ तलीमी माहौल मुतासर हो रहा है, साफ सुथरा माहौल मैसर न होने से स्कूल में बच्चों की तादाद में भी कमी हो रही है। इलाका मकीनों का कहना है जहाँ पे पानी का बहुत बड़ा तालाब गंदे पानी का है, जिसमें सारे शहर का गंदा पानी इधर आके जमा हो रहा है, जिसकी गहराई तकरीबन 25 से 30 फुट है और इसके साथ ही कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, जिसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब कम होते होते 50 की तकरीबन तादाद रह चुकी है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसकी वजह से इधर गंदगी की वजह से मच्छर और बच्चे जो बीमार हो रहे हैं, मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, डेंगू का शिकार हो रहे हैं। तो हमारी इल्तिजा है अपना असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला से, डीसी पाकपतन से, कमिश्नर से और मरियम नवाज सीएम पंजाब आरीवाला से, जिनका विजन है कि साफ़ सुथरा पंजाब। तो हमारी उनसे गुजारिश है, अगर साफ़ सुथरा पंजाब उनका विजन है तो हमारा जो मोहल्ला है वो भी पंजाब के ही अंदर है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर सफाई का इंतजाम किया जाए, जोहड़ का पानी निकाला जाए और कचरे ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाएं, ताकि अवाम को बीमारियों और बदबू से निजात मिल सके। अगर बरवकत तवज्जो ना दी गई तो वबाई अमराज मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकते हैं और इलाका मकीनों को नाकाबिले तलाफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरीवाला। इलाकाई खबरों से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।